Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. So our module 1 was finished. Mm, Most probably this Sunday you will have a test of module 1. Okay. After every module, we will have one test, MCQs on Blackboard. So till module 1, that is till structures, we will have a test this Sunday. Timings and total number of questions, etc. I will inform you later. So just keep on preparing. Okay. Sunday you will have a test. So today we will be starting our module 2, that is linked list. Linked test. This is the next data structure that we have to read. How this linked list actually looks like. Here we will have some lists. Okay. A list will contain two parts. The first part, you can put any data here, either an integer, character, float, double, any data or any character. Okay. Any data type you can put in the first part. The second part will point to the next list. The second part will point to the next list. Same case here also. In the next list, I will have the first part as data, the second part as a pointer to the next list. And this is how the list will be created. This will be the third list. This will be the fourth list. This will be the fifth list. And suppose I have sixth list like this. Okay. This list contains two parts. The first is here, that is suppose data. This first part is data. The second part is, I will call it as link. Again data, again link, data, link. Can anyone tell me, just using common sense, I would say, what is the difference? What could be the difference between an array and a linked list? Linked list पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? Array से सारा काम चल तो सकता है. Why we need linked list? Any special or anything you can compare it with arrays? Just compare it with arrays only. As a special type of data structure, why we need to create if you are already having arrays? Any idea? देखो इसमें पहले मैं बता दूं इसमें बेनिफिट एक क्या है. This is my list. Okay, suppose this list, this linked list contains how many lists total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lists are there total, right? Everyone can see that. First list, second list, third list, fourth list, fifth list, sixth list, right? This linked list contains 6 lists. Suppose I want to create an array with 6 elements. इसका काम भी वही है. Suppose in the first list I put, say, 1. In the second list I put 2. In the third list I put 3. In the fourth list I put 4. In the fifth list I put 5. In the sixth list I put 6. So I have created a linked list with 6 lists, and in every list I have put some integers 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suppose instead of that I create an array of 6 elements like this. First element, second element, third element, fourth element, fifth element, sixth element. So this will be a of 6, obviously. First element you can put at a of 0, second element you can put at a of 1, then a of 2, a of 3, a of 4, a of 5. Right? So just like in this linked list, the first element is 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then इसको 10 कर देते हैं. First element is 10, then 20, then 30, then 40, then 50, then 60. So array में भी the first element will be 10, the second element will be 20, the third element 40, 50, 60. So this is my linked list, this is my array. Can you spot any differences? Spot the differences. Differences क्या हैं दोनों में? So in English, they are not adjacent position, but still connected by the link in arrays. They need to be, yes, good. You see in this array, अगर array में the first element is kept at 100 address, the second element, this 20 will definitely will be kept at 102. ये continuous है ना? Every element of the array is at a continuous memory location. So if the first element is at 100, the second will be at 102, the third will be at 104, and so on and so forth.
every element will be in a order or in a continuous fashion. But in linked list, this is not a case because this is a pointer. This is a pointer. It is possible that the first element is kept at 100 and the second element is directly kept at 200. This is possible in linked list. The third element may be kept at 5000 because this is just a pointer. एक लिस्ट बना के दूसरी लिस्ट मेमोरी में कहीं पे भी हो, I will just connect it with the help of this pointer. So does this mean that arrays are better? That if we are able to keep all the elements are together, तो इसका मतलब ये हुआ कि array बढ़िया होना चाहिए? Yes or no? Any idea? Just think. एरे में सर सीक्वेंशियली हम लोग ट्रीट करेंगे सारे एलिमेंट्स को, लेकिन लिंक लिस्ट में वैसा नहीं है. सपोज करो, जस्ट थिंक दैट दिस इज माय कंप्यूटर्स मेमोरी. ये मेरी कंप्यूटर की मेमोरी है. लॉट ऑफ प्रोग्राम्स एंड फाइल्स आर रनिंग. Lots of files and programs are running. I want to create this array of 6 integers. But इस पूरी मेमोरी में I don't have अब अगर array बनाना है, if you want to create array, you need continuous memory of 6. Continuous memory चाहिए ना, एक के बाद एक. Right? We need continuous space. But suppose I don't have continuous spaces available. But एक space यहाँ available है, एक space यहाँ available है 2 बाइट की, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे कर करके छोटी छोटी बहुत सारी spaces available है. But I don't have continuous memory available. तो array तो बना ही नहीं सकते. अगर continuous memory available ही नहीं है तो जैसे ही array बनाओगे array तो बनेगा नहीं. But I can create a linked list. जितनी जगह खाली है, फर्स्ट लिस्ट ये हो जाएगी, सेकंड ये हो जाएगी, थर्ड आई विल कनेक्ट इट लाइक दिस, फोर्थ आई विल कनेक्ट इट लाइक दिस, फिफ्थ आई विल कनेक्ट इट लाइक दिस, sixth I will connect it like this. So when you are not having enough space in memory, yes, Karthik, when you are not having enough space, definitely you have to go for linked list because linked list doesn't need any continuous memory locations. Whatever memory location is free, I will create a list there and I will connect another memory location with the help of this pointer. इससे कम जगह में सेम काम हम कर सकते हैं एरे वाला. लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी है. अगर लिंक लिस्ट में प्रोज है तो प्रॉब्लम ये है दैट सपोज I want to access this a of 3. I want to access this fourth element of the array. You can directly write a of 3, right? Because we know that array में all the elements are at the continuous memory location. We know the base address. Base address तो पता होता है ना हमें array का. What we do from that base address we add how many elements we have to cross and what is the size of each element. Yes or no? This is how we reach a of 3. So we can directly add something to the base address of the array and we can reach a of 3 in order of one time. इसको करने में order of one time ही लगता है. To access any element of the array, a of 4, a of 2, a of 3, we need order of one time only because we know the base address. उसमें बस add कर देना कितने element cross करने हैं, that's it. But can you do something like this in the linked list? Suppose I want to access this 40 in the linked list. Can I do this in order of one time? क्या मैं डायरेक्टली 40 तक जा सकता हूँ? Suppose इसकी base address 100 है. Suppose the base address of the first list is 100. Can I add something to 100 directly and reach this 40? You cannot do that. क्योंकि एक के बगल एक तो रखी ही नहीं है. First you have to go to this 10. इस 10 से जाना पड़ेगा 20 पे. फिर 20 से जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा लिंक कहाँ जा रही है, फिर जाना पड़ेगा उस लिंक तक 30 तक, फिर 30 से देखना पड़ेगा लिंक कहाँ जा रही है, then you can reach till 40. You cannot reach any element of the linked list in order of one time. You will take order of n time in the worst case. Okay, so we have seen few merits and few demerits with regard to linked list and arrays, but again the question comes, ठीक है सारी pros and cons अपनी जगह, but why actually you need linked list? The very basic reason that you need linked list is because there is a problem with arrays. You have to tell the total number of elements that you want in an array. चाहे वो यूजर से पूछो and चाहे वो प्री डिफाइन कर दो. You do something like this #def max equals to 1000. Okay, मतलब array का maximum limit you have to define. You cannot increase the number of elements in the array on the go.
कि पहले सोचा था 4 एलिमेंट का एरे बनाऊंगा, अब जरूरत 5वें की पड़ रही, सो आई कैन ऐड द 5th एलिमेंट. यू कैन नॉट डू दैट इन एरेज. एरेज हैज टू बी स्टैटिक. एरेज हैज टू बी स्टैटिक. तभी तो लूप चलेगा. लूप कहां से चलेगा? फॉर आई इक्वल टू 1 to n. लेकिन ये n यूजर से पूछते हो ना that please tell me how many total number of elements I want. This n is predefined. User Yes, says sir. 10, तो ये 10 पहले ही बता देता है. Then you can enter those 10 elements. But you cannot do something like this कि चलो मैं एक array बनाता हूँ 5 एलिमेंट का. So I created an array of 5 elements like this. और मुझे अब छठा एलिमेंट भी चाहिए. I need the 6th element also. तो बाद में लगा दोगे. You cannot do that in arrays. You cannot add elements in the arrays dynamically or during runtime. malloc यूज कर सकते हैं, बट malloc से भी you need at least to know what is the maximum limit. डिफरेंट डेटा टाइप्स नहीं हो सकते केशव लिंक लिस्ट में. अगर यहाँ पे एक इंटीजर है तो यहाँ पे कैरेक्टर नहीं पुट कर दोगे आके. वो भी देखेंगे लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट होता है. वी विल सी. उससे समझ आ जाएगा तुम्हें व्हाट वी कैन डू. कुछ हैक्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिसकी मदद से पीपल डू दैट, बट दैट इज नॉट द क्लासिकल लिंक लिस्ट. इन अ क्लासिकल लिंक लिस्ट यू डोंट क्रिएट, मतलब यहां पे अगर एक इंटीजर रख रहे हो तो यहां पे कैरेक्टर नहीं रखोगे. नहीं बट द टाइप, सी वेट जस्ट वेट. दिस लिस्ट, एवरी लिस्ट इज ऑफ द सेम टाइप केशव, है ना. ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट एक इंटीजर टाइप की है तो ये लिस्ट एक कैरेक्टर टाइप की हो सकती है. क्यों? क्योंकि हर लिस्ट का टाइप, दिस इज हाउ यू डिफाइन अ लिस्ट. चलो अभी इसे वो देख लेते हैं पहले. हाउ यू डिफाइन अ लिस्ट. ये लिस्ट बनाते कैसे? इफ यू सी हियर केयरफुली, in the first part I am having a data that can be either integer, character, float, kuch bhi. In the second part I am having a pointer. So two different types of data I am keeping together, right? जब दो different data को together रखना होता है तो which data structure we use structures. If you want to create, in the first part I am keeping an integer, in the second part there is a pointer. दो different data types हैं जो एक साथ रखे गए. If you want to keep two different data types together, we use structure. So with the help of structure only we will define a list. So what is the structure of this list? Struct, suppose the name of the list is node. कुछ भी नाम दे सकते हो. For now suppose the name of the list is node. This list is known as node. What is defined here? In the first part I have to define a data that is suppose an integer. So I will define data like this: int data. Int data. Second part is a link, that is a pointer. What I've told you regarding self-referential structures, that if you create a pointer inside the structure like this, अगर इस structure का pointer बनाना है तो कैसे बनाओगे? Struct node star suppose link. This means that this link is a pointer to the type structure. ऐसे करते हो ना, शायद हमने कल लैब में भी we have discussed and in earlier classes also we have discussed. Suppose you want to create an integer pointer. So we will write something like this: int star p. Means this pointer p will point to an integer. Suppose you want to create a pointer that points to a character. So you write something like this: char star p. This pointer p points to a character. Yes or no? Suppose I want to create a pointer that points to a float value. So you write float star p. Means this p will point to float. So whatever is written before that means ये pointer link नाम का pointer, this link pointer will point to a structure of type node. ये मतलब वो इस line का. And if I am writing or I am creating this pointer inside the structure itself, this is known as a self-referential structure. Why self-referential structure? Because this structure node contains a pointer named link that will point to either this structure or to different structures of the same type. Listen to my word carefully. This link pointer will either point to this structure itself, ये इसी को point करेगा, या तो इसके जैसे दिखने वाले different structures को point करेगा. मैं कह रहा हूं इसके जैसे दिखने वाले केशव. तो अगर इसके जैसे आप दिख रहे हो तो अगर इसमें इंटीजर है तो दूसरे में भी तो इंटीजर ही होगा. ओके, बिकॉज इफ यू आर सेइंग दैट यहां पे मैं इंटीजर नहीं रखूंगा, हियर आई विल पुट अ कैरेक्टर, तो उसके लिए तो पूरा स्ट्रक्चर ही दूसरा बनाना पड़ेगा. उसके लिए तो स्ट्रक्चर ही यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंट स्ट्रक्ट नोड, और फिर यहाँ पे कैर डेटा यू हैव टू डिफाइन, कैर डेटा, right? So that is not what we do. Okay, so everyone, this is how
a list looks like. List is nothing but just a structure. List is nothing but just a structure. Display the first part is can be anything, any data. Suppose I am having integer data. The next part is a pointer that points to the structure of the type node. Means यहां से जो पॉइंटर निकलेगा वो इसी टाइप की लिस्ट को पॉइंट कर सकता है, इसका मतलब ये है। यहां से जो पॉइंटर निकलेगा वो इसी टाइप की लिस्ट को पॉइंट कर सकता है, इसका ये मतलब है। यहां तक कोई डाउट? So this thing we have seen how a list looks like. Now, either to search any element in this link, to add any list to this link, to delete any list from this link, ऐसा कुछ भी करना है, what you have to do is you need a pointer that is known as a head pointer. ये भी एक पॉइंटर है जो कि इसी स्ट्रक्चर टाइप का है। तो ये हेड पॉइंटर कैसे क्रिएट हुआ होगा? व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ दिस हेड पॉइंटर? दिस हेड इज अ पॉइंटर दैट इज पॉइंटिंग टू दिस लिस्ट। तो हेड ऐसे क्रिएट होगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड। यस और नो? जैसे लिंक क्रिएट हुआ, लिंक भी सेम ही चीज है ना, उसी तरह हेड भी, बिकॉज हेड इज अ पॉइंटर that points to the structure of the type node. That is why struct node star head. This is how we have created this head. Now let's do one thing. Suppose let's put characters inside this list for a while. So this is a very interesting topic, very easy, but just pay attention. Okay, don't let your attention vanish even for a second. You will understand this in one go. एक बार अभी तुरंत समझ आ गया तो आगे सारी चीजें आसान हो जाएंगी. How we insert elements, delete, सारी चीजें आसान हो जाएंगी. Just see carefully. Suppose I have created a list like this. Struct node, and in this I have written char data and struct node star link. तो ये ऐसा कुछ दिखेगा जिसमें यहाँ पे डेटा आना चाहिए. So I will put data here, A, here B. Here C, D, E, F, right? This is how I've created a list. Suppose the address of this first list is 10. This first list is kept at 10. This second list is suppose not kept at. वैसे अगर एरे बनाते तो दूसरा वाला कहां पे आता? This B 11 पे आता. Character है तो 1 byte, right? If this would have been an array, if the first element is kept at 10, the second would have been at 11 because this is a character. Yes, sir. But suppose ये list है तो दूसरा 20 पे पड़ा है ना? Third is suppose at 30, fourth is at 40, fifth is at 50, sixth is at 60. ये पड़ा है F is kept at 60. चलो बहुत बढ़िया. Now I'm saying you पहली लिस्ट को देखो, just see the first list. This is kept at 10 and this is pointing to some location. This is pointing to this location. इस लोकेशन का एड्रेस क्या है? What is the location of this address or this list? 20. तो यहां पे क्या आना चाहिए? ये पॉइंटर है ना, इसके अंदर एड्रेस होगा ना, तो इसके अंदर 20 नहीं आना चाहिए because this is pointing to 20. This is pointing to the list which is kept at 20. So 20 should come here because this is a pointer, obviously. Yes, This sir. list, this second list is pointing, है ना? This second list is pointing to a location which is kept at 30. So here 30 should come. 30 should come. This third list is pointing to a location at 40. This third list is pointing to a location which is at 40. So 40 should come in. This fourth list is pointing to a location which is kept at 50. So 50 will come in. This fifth list is pointing to a location which is kept at 60. So 60 should come here. ये लास्ट वाले भाई साहब कहां पॉइंट कर रहे हैं? Where is this pointing? The last one. Null. किसी को पॉइंट नहीं कर रहा तो here null will come. This is not pointing to anywhere. So null will come. Clear? Yes, sir.
So what will come inside head? What will come inside head? Head भी तो किसी को point कर रहा है ना? 10. Very good. Head is pointing to a location that is at 10. तो 10 आएगा, मतलब एड्रेस आएगा, सब में एड्रेस डालना है, जिसको भी वो पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस डालना है। यहां तक तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब चीजों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सपोज आई राइट अ स्टेटमेंट लाइक दिस। Suppose I write a statement struct node star p। इसका क्या मतलब हुआ? That p will be a pointer that will point to a structure of type node। हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि p एक पॉइंटर होगा जो इनमें से किसी एक लिस्ट को पॉइंट करेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ टाइप नोड का मतलब यही लिस्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ टाइप नोड का मतलब इन्हीं में से कोई एक लिस्ट है। So this statement means P will be a pointer that will point to either of these lists। ये समझ आया सबको? P will be a pointer that will point to either of these lists। इसका मतलब ये है इस लाइन का। ऐसे ही हमने हेड भी बनाया था ना, ऐसे ही हमने लिंक भी बनाया था। Yes, कोई भी sir. पॉइंटर बना रहे हो, एनी पॉइंटर यू वांट टू क्रिएट जो इनमें से किसी एक लिस्ट को पॉइंट करे, तो ऐसे ही बनेगा, बिकॉज दिस लिस्ट इज नथिंग बट स्ट्रक्ट नोड ओनली। स्ट्रक्ट नोड का ही मतलब ये लिस्ट है। व्हेन आई राइट स्ट्रक्ट नोड मतलब ये लिस्ट, कोई भी एक लिस्ट, सब एक ही टाइप की। देन सपोज आई राइट समथिंग लाइक दिस, p equals to, here we have to use indirect selectors, means arrow। बिना एरो के भी कर सकते हैं, बट वो कंफ्यूजिंग लगता है जनरली। दिस इज वेरी इजी, जस्ट पे अटेंशन। वी हैव टू यूज इनडायरेक्ट सेलेक्टर्स। इनडायरेक्ट सेलेक्टर्स की प्रेसिडेंस इज द हाईएस्ट इन द ऑपरेटर टेबल। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रैकेट, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है दीज इनडायरेक्ट सेलेक्टर्स, एंड दे आर इवैल्यूएटेड लेफ्ट टू राइट। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी समझोगे। हेड ऑफ लिंक का लिंक, अब इस लाइन का क्या मतलब है, दिस वी हैव टू सी। इन पी आई एम स्टोरिंग हेड ऑफ लिंक का लिंक। देखते हैं। अच्छा, पहली चीज, फर्स्ट थिंग, वॉट एवर इसका जो आंसर आएगा, इस पूरे राइट हैंड साइड का जो आंसर आएगा, वो जाके स्टोर होगा पी में। यस और नो? Yes, sir. यही मतलब होता है ना, वॉट एवर Yes, जो राइट sir. हैंड साइड का आंसर आएगा दैट विल गो Yes, sir. बी स्टोर्ड इन लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड का Yes, आंसर sir. क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हेड? हेड मतलब 10। 10. 10. मतलब जब मैं बोल रहा हूँ हेड, व्हेन आई एम सेइंग हेड, हेड का मतलब है 10, मतलब मैं इस जगह खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग एट 10। यस और नो? बिकॉज हेड इज 10, सो आई एम स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट। आई एम सेइंग हेड का लिंक, हेड का लिंक मतलब 10 का लिंक, मतलब मैं 10 पे खड़ा हूं, और 10 का लिंक मतलब 20। 20. 20 मतलब इस पूरे 20. का आंसर है 20। इस पूरे का आंसर है 20। मतलब जैसे 20 मैंने बोला, मैं कहा आई एम स्टैंडिंग हियर नाउ, 20 बोलते ही मैं यहां खड़ा हो गया, उस जगह जाके खड़े हो जाओगे। आई एम स्टैंडिंग हियर नाउ। 20 का लिंक मतलब 30. 30. 30। जस्ट गो वेरी स्लो, 30. कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं है, आराम से करेंगे। फिर से देखते हैं, लेट जस्ट सी फ्रॉम द स्टार्टिंग अगेन। जिस चीज के बारे में बोल लो, यू विल गो एंड स्टैंड एट दैट पोजीशन। आई एम टॉकिंग अबाउट हेड, हेड का मतलब है 10, तो मैं 10 पे जाके खड़ा हो जाऊंगा और वहां से देखना शुरू करूंगा। 10 का लिंक, दिस मीन्स 10 का लिंक, 10 ये हूं मैं, 10 का लिंक मतलब 20, 10 का लिंक मतलब 20। सो आई विल गो एंड स्टैंड ऑन 20 नाउ। अब मैं 20 पे खड़ा हो जाऊंगा। 20 का लिंक मतलब 30, सो आई विल गो एंड स्टैंड ऑन 30। सो इस पूरे का आंसर 30 है, इस पूरे का आंसर 30 है ना, मैं 30 पे खड़ा हूं इस वक्त। फाइनली एट द लास्ट आई एम स्टैंडिंग एट 30, Yes, sir. राइट? एंड 30 आई एम सेंडिंग टू पी, पी में जाके स्टोर हो रहा है ना फाइनल आंसर, फाइनल आंसर इज स्टोरिंग गेटिंग स्टोर्ड इन पी। सो पी में कितना आ गया? 30. 30 आया ना पी में, 30 आया। 30. सो मींस पी विल बी अ Yes, sir. पॉइंटर जिसके अंदर आ गया 30। 30 का मतलब है पी पॉइंट करेगा इसको। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज द मीनिंग। Okay, sir. समझे? Let's Yes, see sir. another example. Suppose I write something like this. P में
या फिर p को छोड़ो, I create another, अभी तो चलो p इसको पॉइंट कर रहा है, right now p is pointing to 30. Now suppose I create another pointer t, एक और पॉइंटर बनाता हूं t, again of the type struct node, means this t will also point to any of these list. अब t में I am storing, suppose p का लिंक का लिंक का लिंक. Question is to which list this t will point. First try on your own. Sir, 60. देखो, Yes, sir. 60. लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. p का मतलब है p में 30 पड़ा है, अभी p में 30 पड़ा. सो 30, जैसे ही 30 लिखा, आई विल गो एंड स्टैंड ऑन 30, मैं 30 पे खड़ा हो जाऊंगा और वहां से देखना शुरू करूंगा. 30 का लिंक, 30 का लिंक कितना है 40, मींस आई विल गो एंड स्टैंड ऑन 40, मैं यहां खड़ा हो जाऊंगा. 30 का लिंक इज 40, सो आई विल गो एंड स्टैंड ऑन 40. 40 का लिंक, 40 का लिंक, 40 का लिंक इज 50, सो आई विल गो एंड स्टैंड ऑन 50, मैं 50 पे खड़ा हो जाऊंगा. 50 का लिंक, 50 का लिंक इज 60, सो आई विल गो एंड स्टैंड ऑन 60. सो फाइनली टी में क्या आ जाएगा 60, मींस टी विल पॉइंट टू 60. कोई दिक्कत परेशानी? Any doubts? Very slow. With lots of examples, you will understand this. This is very easy, very interesting. इसमें से कुछ complicated नहीं है. बस ये पढ़ना आना चाहिए. What I am teaching you right now is how you have to read this linked list. एक बार linked list पढ़ते कैसे वो सीख जाओ, फिर insert, delete, traverse वो सब बहुत आसान है. First you should know how you have to read the list. कैसे पढ़ना है हर एक लिस्ट को. Suppose I give you printf head का डेटा, printf head का डेटा, तो क्या प्रिंट होगा? सेम प्रोसेस फॉलो, डोंट जंप, डोंट हरी एनी. हेड मतलब 10, हेड मतलब 10, जैसे 10 लिखा मैं 10 पे जाके खड़ा हो जाऊंगा. जैसे ही वो नंबर यहां लिखोगे वहीं जाके यू गो एंड स्टैंड देयर. 10 का डेटा, 10 का डेटा क्या है? ए है, सो ए विल बी प्रिंटेड. नो नो नो, इट विल नॉट कम बियॉन्ड 60. क्या? यू हैव टू स्टॉप एट 60. मिर्जा, यू हैव टू स्टॉप एट 60. ये लूप जो चलेगा बाद में बात करेंगे वो सब, बट यू हैव टू स्टॉप एट 60. 60 के बाद कुछ नहीं है, क्योंकि 60 किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है. यू, अच्छा, another thing, what we are reading single or singly linked list. Right now we are seeing singly linked list. Singly linked list का मतलब होता है one list will be connected to only one another list. You can go only in one direction, you cannot come back. कोई उल्टा साइन नहीं है ना, जो जिस डायरेक्शन में साइन है उसी डायरेक्शन में जाओगे. अगर यहीं पे दो साइन होते, if I would be having two signs between the list like this, I can go forward also, I can go backward also, then this would have been known as doubly linked list. If suppose ये लास्ट वाले 60 से मैं आके पहले वाले नोड को कनेक्ट कर देता, then this would have been a circular linked list, है ना. ये सारे कोर्सेज में वो बाद में बात करेंगे, but right now what we are seeing the first type, that is singly linked list. Every list is connected to only one another link and you can move only in the one direction, you cannot come back. ठीक है. So suppose I give you something like this, head का लिंक का डेटा, what will be printed? हेड के लिंक का डेटा, what will be printed? Again same process follow. हेड मतलब 10, so जैसे 10 लिखोगे go and stand on 10. I am standing at 10. 10 का लिंक, 10 का लिंक क्या है? 10 का लिंक is 20, 20, so I will go and stand on 20. 20 का डेटा, 20 का डेटा is b, so b will be printed, है ना. Suppose I write something like this, head का लिंक का लिंक का लिंक का डेटा, what will be printed? D. Same process, head मतलब 10, so just go and stand on 10. 10 का लिंक, 10 का लिंक is 20, so I am standing here.
20 का link, 20 Sir, का link is D. 30, so I'm standing here. 30 का link is 40, so I'm standing here. 40 का डेटा मतलब D. 40 के लिंक का डेटा होता तो 40 यहाँ होता, 40 का लिंक मतलब 50, आई वुड बी स्टैंडिंग हियर, उसका डेटा मतलब E, ऐसे पढ़ते। क्लियर? पढ़ना आ गया सबको? Yes, sir. Now suppose my current linked list looks something like this. Okay, this is my list. I have the head pointer which is pointing to the first list, and I'm having the P pointer जो हमने बनाया था, that is pointing to this third list. Now tell me what will happen after I write a statement like this. P tends to link, P का link equals P. What will happen if I write something like this? इसमें एक चीज का ध्यान दो, the basic rules of programming remains the same. This is a assignment operator. Whatever is happening on the right hand side, उसका आंसर उठ के लेफ्ट हैंड साइड में आता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज द लोकेशन, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट द आंसर, लेफ्ट हैंड साइड इज द लोकेशन जहां पे ये चीज होने वाली है। मतलब P में जो भी है इस वक्त, P में 30 है ना, वो उठ के कहां स्टोर होगा? 30 विल स्टोर ऑन दिस लोकेशन, जो भी ये लोकेशन है। Getting this? Whatever is on the right hand side, that will go and stored on this left hand side. जैसा होता है, for example, I write a equals to 2. So जो भी right hand side में है, वो जाके left hand side में store हो जाता है. That go and stores on the left hand side. So left hand side एक location होती है. So here also this left hand side is a location. You have to find this location. ये location है क्या? Same method. पहले try करो. Sir, I think at position 60, the value will be overwritten to B. Sorry, C. Again. Yes. Good. Take your time. Do it very slowly. This is okay. You have to go very slow. No issues. अगर 50-60% भी समझ आ रहा है what we are doing, it's more than enough. Because this thing, you know, when people prepare for the GATE exams after their final years, वो फिर से ये सब पढ़ते हैं। वो GATE एग्जाम का सिलेबस यही है जो तुम लोगों के फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम जो नेक्स्ट ईयर में आएगा, है ना, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। They again read the same thing. So you are doing currently what you should be doing after 4 years. Okay, so just go at a very slow pace. 60 will be stored at C. देखो फिर से लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। पी का मतलब कितना है? 30। मतलब आई विल गो एंड स्टैंड ऑन 30। मैं यहां पे खड़ा हो जाऊंगा और यहां से देखना शुरू करूंगा। यही मतलब ऐसे पढ़ते हुए आ रहे हैं ना अभी तक। 30 मींस आई विल गो एंड स्टैंड ऑन 30 एंड देन आई विल कीप ऑन रीडिंग। 30 का लिंक मतलब 30 का लिंक मतलब 40। आई विल स्टैंड हियर 40। 40 का लिंक, 40 मैं यहां खड़ा हूं, 40 का लिंक मतलब 50। 40 का लिंक मींस 50। आई एम स्टैंडिंग ऑन 50। 50 का लिंक मतलब 60। 50 का लिंक मतलब 60। ये 60 ओवर रिटर्न हो रहा है किससे? मतलब ये 60 ओवर राइट होगा ना, दिस 60 विल बी ओवर रिटर्न। 60 किससे ओवर रिटर्न हो रहा है? P से। P मतलब 30। मतलब दिस 60 इज ओवर रिटर्न नाउ विथ 30। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लिंक टूट गया, अब ये पॉइंट नहीं कर सकता 60 को। दिस लिंक इज ब्रोकन। ये मतलब है ना, ये 60 क्या एड्रेस है ना, ये 60 बता रहा था कि ये लिस्ट किसको पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट। Now this 60 has been overwritten with 30. Means this link is broken now. You are not pointing to the memory location 60 now. You are pointing to the memory location 30 now. Like this. This is the meaning. You have overwritten this 60 with 30. This means now you are not pointing to this or this last list which is kept at 60. Now you are pointing to the memory location 30. This link is completely broken. Now you cannot reach this last element. This is lost somewhere in the memory. कोई दिक्कत Can परेशानी? you please explain this point again? I was saying, यहाँ तो समझ आया, ये ओवर रिटर्न किया हमने 30 से। Yes, sir.
तो 30 अब ये है क्या जो राइट हैंड साइड में लिंक में लिख रहे हैं, है क्या ये एड्रेस है राइट। अगर लिंक में 20 लिखा है मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट आई एम पॉइंटिंग टू द मेमोरी लोकेशन 20। यहाँ 30 लिखा है इसका मतलब यहां से मैं पॉइंट कर रहा हूँ 30 को। यहाँ 40 लिखा है मतलब यहां से मैं पॉइंट कर रहा हूँ 40 को। तो अगर यहाँ 60 लिखा था मतलब आई वॉज पॉइंटिंग टू 60 लाइक दिस मेमोरी लोकेशन 60 को, राइट मिर्जा। कौन Yes, पूछ रहा sir. था, है ना। इफ Yes, sir. 60 was written here it was meant that I am pointing to memory location 60। यहां से मैं 60 को पॉइंट कर रहा था, अब मैंने 60 को ही ओवरराइट कर दिया। मैंने यहाँ पे एड्रेस चेंज करके 30 कर दिया, मतलब अब ये लिस्ट 60 को पॉइंट नहीं करेगी, ये लिस्ट विल पॉइंट टू 30। मतलब इसको पॉइंट करेगा, इसको 60 को पॉइंट नहीं करेगा, बस यही है। Okay, sir. Clear. Thank you. समझ आया सबको ये? थोड़ा बहुत भी समझ आया तो इट्स फाइन, आपको 100% समझने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही बार में 100 कैसे समझोगे, ऐसे थोड़ी चलता है, धीरे धीरे विल गो स्लो। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अभी की कंडीशन ऐसी है, करंट कंडीशन लुक समथिंग लाइक दिस। सपोज आई राइट हेड के लिंक में आई स्टोर पी का लिंक। इसका क्या अर्थ है? इफ आई राइट समथिंग लाइक हेड के लिंक में, अगेन द सेम रूल, whatever is written on the right hand side that will go and store at this location, that will go and store at this location। पहले तो बताओ लोकेशन क्या है। हेड, हेड मतलब 10, हेड मतलब 10, 10 का लिंक मतलब मैं 10 पे खड़ा हूं, 10 का लिंक मतलब 20, मतलब ये मेमोरी लोकेशन 20 है कि नहीं। हेड का लिंक मतलब 20, हेड मतलब 10, तो मैं 10 पे खड़ा हूं, 10 का लिंक मतलब 20। So this 20 is overwritten, this 20 is overwritten, Yes, sir. It is over है it ना। to 40. किससे ओवरराइट कर रहा है? पी के लिंक से। पी का लिंक कितना है? 40। पी का लिंक तो दिख ही रहा है 40। तो दिस 20 इज नाउ ओवररिटन विथ 40। मतलब अभी पहले 20 को पॉइंट कर रहा था, अब 20 को पॉइंट नहीं करेगा, दिस लिंक इज ब्रोकन नाउ। नाउ दिस विल पॉइंट टू 40, नाउ दिस विल पॉइंट टू 40। ये मतलब है इसका। नहीं, बी भी रिमूव नहीं हुआ, बी तो अभी तो जुड़ा हुआ है, बट यू कैन नॉट रीच बी एक्चुअली, यू कैन नॉट रीच बी नाउ। फ्रॉम हेड यू कैन गो टू ए, फ्रॉम ए यू कैन गो टू डी, और फिर ई, ऐसे जाते जाओगे, ये दोनों रीच नहीं कर सकते, कैन नॉट रीच बी एंड सी नाउ। सी तो चल तब भी रीच कर सकते हो, पी ने सी को पकड़ रखा है ना, पी इज होल्डिंग सी, तो सी तो तब, पी तो तब, सी तो तब भी पहुंच जाओगे, बी नहीं पहुंच पाओगे। नो वन इज होल्डिंग बी, नाइदर हेड इज होल्डिंग नाइदर पी इज होल्डिंग, यू कैन नॉट रीच बी। पूछो कोई डाउट इसमें? You can reach, No, sir. go in. This is a very good question actually. Okay, B is not removed from the list now. B तो अभी भी है लिस्ट में, but you cannot reach B. B प्रिंट नहीं कर सकते कैसे भी, बिकॉज दो पॉइंटर है, खाली हेड है। अच्छा एक चीज और, इन दिस होल लिंक लिस्ट, चाहे कोई भी लिस्ट एक्सेस करनी हो, यू वांट टू प्रिंट एनी लिस्ट, यू वांट टू डिलीट एनी लिस्ट, यू वांट टू कुछ भी करना हो लिंक लिस्ट में, यू नीड दिस पॉइंटर। इसी पॉइंटर की मदद से कर सकते हो, इसी पॉइंटर को आगे पीछे मूव करके हम लोग काम कर सकते हैं। आई एम हैविंग ओनली टू पॉइंटर्स, हेड एंड पी। हेड की मदद से आई कैन रीच ए, from there I can reach D, from there I can reach E। P की मदद से I can reach C, I can reach D, I can reach E, but none of them can help me in either reaching this B or reaching this F। F तो चला ही गया, और F तो खो गया, F तो कोई नहीं ले जा सकता। ठीक है, now tell me if I write, ये 20 ओवर रिटर्न हो गया 40 से। थोड़ा और इसके क्वेश्चंस करते हैं पहले। सपोज आई राइट हेड के लिंक में, हेड के लिंक में इफ आई स्टोर पी का लिंक, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सर वो ये 40 है या 20 है रहेगा, कहां पे? जो आपने अभी ओवर रिटर्न करा था सर पिछले क्वेश्चन पर? 40 आया ना,
40 तो आया यहाँ पे, तभी तो ये पॉइंट कर रहा है 40 मेमोरी लोकेशन को। यहाँ पे 40 आया तभी ये पॉइंट कर रहा है, देखो 40 वाले को। सर जो अब क्वेश्चन आपने दिया है तो वो फिर इसी बेसिस पे करें जो A40 होगा। हाँ हाँ, बेसिस ठीक है बेसिस सर। क्या, यही एक ही तरीका है, और क्या करोगे इसमें? सेम थिंग, सेम लॉजिक, व्हाटएवर इज ऑन द राइट हैंड साइड दैट विल गो एंड स्टोर्ड एट द लेफ्ट हैंड साइड लोकेशन। पहले तो लोकेशन देखो क्या है, फर्स्ट फाइंड दिस लोकेशन। हेड का लिंक हेड ये है, हेड का लिंक ये है, लिंक से यहाँ पहुंचे, उसके लिंक का लिंक मतलब 50 मतलब यहाँ पहुंचे। Yes, sir. राइट, There will be no change. सो लेट्स सी, हेड इज 10 मतलब मैं 10 पे खड़ा हूँ, 10 का लिंक मतलब 40, मतलब आई एम स्टैंडिंग एट 40, इस लोकेशन पे खड़ा हूं मैं। 40 का लिंक मतलब 50, सो आई एम स्टैंडिंग एट 50। मतलब ये 50 will be overwritten, right? This 50 will be overwritten, not standing this location 50, this 50 will be overwritten। 50 किससे overwritten हो रहा है? P के लिंक से। P का लिंक क्या है? 40, कोई चेंज नहीं होगा, बेसिकली खुद ही को पॉइंट कर जाएगा, बट वो हटाओ, उस जगह भी नहीं जाना है। ठीक है, सो यू गॉट द आइडिया, बेसिक आइडिया थोड़ा बहुत। Yes, sir. with more examples it will be clear। 50-60% ही समझना है, पूरा 100% नहीं समझना है। तो ये हमने, we have seen a little basics that how you, what is a linked list, okay, how you have to read them, etc, etc। Now there are three operations that we perform on linked list। with every operations your reading of linked list will be more clearer। कैसे पढ़ना है वो धीरे धीरे और क्लियर होता जाएगा। Three operations we can perform। The first one is traversing। What is the meaning of traversing? We have discussed this। What is the meaning of Accessing every traversing? element. So Exactly traveling once, exactly one time. to visit or to see each element exactly once। Then you can insert some list in the linked list, and you can delete some elements from the linked list। These three are the major operations। बाकी सर्चिंग तो ट्रावर्सिंग से ही आ जाएगी, कोई भी एलिमेंट सर्च करना, that is traversing। Suppose I have a linked list like this। Suppose I have a linked list, 4 lists are there, 1 2 3 4 lists are there, and this linked list is created something like this। The structure of the list is struct node int data, means the first part will be integer and the second part is a pointer, so obviously it will be struct node star link। This is the structure of a list, means the first part is data as per the structure, the second part is link, data link। these names you can write anything। data को I लिख दो, xyz लिख दो, link को भी in some books they write next instead of link। you can write anything, top, head, down, left, next, whatever you want। then again data, then link, then data, then link। ठीक है, बहुत बढ़िया। then suppose you have a head pointer struct node star head, and that is pointing to the first list। why we need this head pointer? Because with the help of this head pointer only I can access other lists, or I can access any element of the list, है ना? बिना किसी pointers के access नहीं कर सकते हैं किसी भी list को। you need pointer, so this is my head pointer। सब में थोड़ी values डालते हैं पहले। suppose here the data is 1, here the data is 2, here the data is 3, because this is an integer, है ना? integer है, so integer values we have put। suppose the first list is at location 10, the second list is at location 20, the third list is at location 30, the fourth list is at location 40, और ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा तो नन। तो हेड के अंदर क्या आएगा? 10.
बिकॉज हेड इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट लिस्ट जो कि 10 पे रखा है तो 10 आएगा। यहाँ क्या आएगा? दिस लिस्ट इज पॉइंटिंग टू द मेमोरी लोकेशन 20, this 20 list is pointing to the memory location 30, this list is pointing to memory location 40। तो लिंक लिस्ट अपना कुछ ऐसे दिख रहा है। Now what I want is I want to print all the elements of all the list। मुझे सारा 1 2 3 4 प्रिंट करना है, तो कैसे करो? This is traversing। I want to visit all the elements exactly once। I want to print 1 2 3 4। क्या करूं मैं? एक चीज जो मैं कर सकता हूं, that is I can print f हेड का डेटा इन अ लूप। हेड का डेटा ही तो है ना, पहला एलिमेंट क्या है? हेड का डेटा। फर्स्ट एलिमेंट इज हेड का डेटा, तो 1 प्रिंट हो जाएगा डेफिनेटली। अब 2 कैसे प्रिंट करो? हाउ कैन आई प्रिंट 2 नाउ? हेड का लिंक का डाटा। ओके, नेक्स्ट प्रिंट एफ आई कैन राइट हेड के लिंक का डेटा। फिर नेक्स्ट प्रिंट एफ यू हैव टू राइट हेड के लिंक का डेटा, तो 3 प्रिंट होगा। फिर आई हैव टू राइट हेड के लिंक के लिंक के लिंक का डेटा, तो 4 प्रिंट होगा। बट ऐसे सपोज 50 एलिमेंट है लिंक लिस्ट में, यू कैन नॉट डू दिस थिंग, लूप लगाना ही पड़ेगा, है ना? यू नीड अ लूप। लूप क्या लगाए? सपोज आई रन अ व्हाइल लूप, तो कहां तक मुझे लूप रन करना है, कहां तक आई हैव टू मूव? सर जब तक के वन सिंपल नल थिंग, ना हो जाए। जब तक नल ना आ जाए यू कैन से, जब तक यू कैन से। लेकिन क्या यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? व्हाट? टेल मी, क्या नल ना आ जाए? इफ यू यूज दिस हेड पॉइंटर ओनली और ऐसे से मूव करोगे, हेड के लिंक के लिंक के लिंक के लिंक के लिंक के, इट्स वेरी हेड डॉट कंफ्यूजिंग। लिंक। हेड का लिंक खाली, बट हम तो ऐसे मूव नहीं कर रहे ना, हम तो ऐसे मूव कर रहे हैं। हेड का लिंक तो सिर्फ ये है, जीरो नहीं है कार्तिक। दैट इज द पॉइंट हियर, वेरी गुड पॉइंट यू हैव रेज्ड। यू कैन नॉट रन इट टिल 4 बिकॉज यू डोंट नो। मैं एक बार ट्रैवर्स करने के बाद आई कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यही तो फायदा है लिंक लिस्ट का। दिस 4 इज नॉट फिक्स, जब मन आएगा तब नंबर ऑफ लिस्ट बढ़ाता जाऊंगा। देयर इज नो लिमिटेशन टू द नंबर ऑफ लिस्ट, द नंबर ऑफ लिस्ट आर नॉट फिक्स्ड। यू कैन नॉट रन इट फॉर 2 और 3 और 4 टाइम्स। रन तो तभी तक करना है जब तक ये नल ना दिख जाए। नल का मतलब है कि लिस्ट यहां खत्म हुई, पर नल तक रन कैसे करें? अब इसमें दो चीजें, इफ यू आर यूजिंग दिस हेड पॉइंटर ओनली टू मूव, उसमें दो प्रॉब्लम आएंगी। पहले तो ये नल कैसे देखें, इसमें दिक्कत है थोड़ी सी, बिकॉज मूवमेंट ऐसे हो रही है। पहले हेड का डेटा प्रिंट हो रहा है, फिर हेड मूव होगा, हेड के लिंक में मूव होगा, फिर हेड के लिंक का लिंक, फिर हेड के लिंक का लिंक का लिंक, till this you have to go, so you cannot do that। and next problem, if you are using this head pointer, is the next problem is suppose I move this head। पहले मैंने हेड का डेटा, एक काम और कर सकते हो, you can do one more thing। definitely I want to print f head का डेटा, then after printing suppose head का डेटा, I move this head only। मैं इस हेड को ही मूव कर दूं, इस हेड में मैं स्टोर कर दूं हेड का लिंक, तो क्या होगा? inside a loop, just think if I do something like this। सबसे पहले हेड का डेटा प्रिंट होगा, मतलब 1 विल बी प्रिंटेड, एंड इन द नेक्स्ट लाइन आई एम राइटिंग हेड में आई एम स्टोरिंग हेड का लिंक। हेड का लिंक कितना है? 20। सो हेड में मैं क्या लिख रहा हूं? आई एम ओवर राइटिंग हेड विद 20, यही कर रहा हूं ना? आई एम डूइंग द सेम थिंग। सो हेड विल नॉट पॉइंट टू द फर्स्ट वन नाउ, हेड विल पॉइंट टू द सेकेंड लिस्ट नाउ। और फिर से हेड का डेटा प्रिंट होगा, मतलब 2 विल बी प्रिंटेड, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट होगा, एंड देन अगेन आई एम डूइंग द सेम थिंग। आई एम ओवर राइटिंग हेड विद हेड का लिंक। हेड का लिंक कितना है इस वक्त? 30। सो हेड ओवर रिटर्न हो जाएगा 30 से। दिस मीन्स नाउ द हेड विल नॉट पॉइंट टू द 20, हेड विल पॉइंट टू 30। ऐसा कर सकते हैं ना? वी आर मूविंग हेड एवरी टाइम, वी आर मूविंग हेड एवरी टाइम, नेक्स्ट टाइम हेड विल पॉइंट टू दिस लोकेशन। और इसको एक लूप के अंदर डाल दो, एक वाइल का लूप चला दो। कहां तक? टिल द टाइम हेड का, नाउ यू कैन डू दिस थिंग, जब तक हेड का लिंक नल ना हो जाए, इज नॉट इक्वल टू। काम बन गया? काम बन गया? कुछ मजा नहीं आया, लेकिन इसमें एक दिक्कत है।
एक बार तो चलो अपने खुशी के लिए यू हैव ट्रावर्स द लिस्ट, है ना, हेड वेड को मूव करके 1 2 3 4 प्रिंट कर दिया। बट सपोज आफ्टर प्रिंटिंग दैट, लास्ट टाइम जब 4 प्रिंट होगा तो हेड 4 को पॉइंट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम जब 4 प्रिंट होगा सो हेड विल बी पॉइंटिंग टू 4। यस और नो? हेड इसको पॉइंट कर रहा होगा ऐसे। Yes, sir. बट सपोज अब मुझे फिर से प्रिंट करना है स्टार्टिंग से, सेकेंड टाइम भी प्रिंट करना है, क्या मैं कर सकता हूँ सेकेंड टाइम प्रिंट? कैन आई गो बैक? हेड को उठा के मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रख सकता हूँ यहाँ पे? No, नो sir. नो 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 सर, फिर से सपोज आई 10 वांट कि मैं इन दोनों लिस्ट के बीच में एक लिस्ट यहाँ पे लगाऊं, आई वांट टू इंसर्ट वन लिस्ट बिटवीन दीज टू लिस्ट, क्या मैं वैसा कर सकता हूँ? अब कर ही नहीं सकता, ये तीनों तो कट गए, इन तीनों तक तो आप जा ही नहीं सकते वापस। वी आर रीडिंग सिंगली लिंक लिस्ट, इफ यू हैव मूव्ड इन वन डायरेक्शन यू कैन नॉट कम बैक। गेटिंग दिस? सो दैट्स व्हाई प्रॉब्लम समझ आई सबको? वापस नहीं आ सकते ना, सिंपल यही प्रॉब्लम है। अगर एक So, बार हेड sir, मूव कर दिया, we can make हाँ another pointer that यस stores the value of it. yes, good, that's what we have to do. Always remember, in linked list you will not move this head pointer because this is risky. If you move the head pointer once, ऐसा चांस है कि उस लिस्ट को दोबारा देख भी ना पाओ। If you move the head pointer from here to here, you cannot see this first list, so you will not move head pointer. ये 10 पे था, ये 20 पे था, ये 30 पे था, ये 40 पे था। कुछ भी करना है, ट्रावर्स करना है, सर्च करना है, डिलीट करना है, ऐड करना है, हेड पॉइंटर को हमेशा फर्स्ट जगह पे ही रखो, यू डोंट मूव, ताकि लिस्ट पकड़ के रखे ना, दोबारा प्रिंट करना हो तो पकड़ के रखे। व्हाट यू डू, यू क्रिएट अनदर पॉइंटर, यू क्रिएट अनदर पॉइंटर, एक टेम्पररी पॉइंटर बना लो दूसरा। कैसे बनाओगे? सेम जैसे हेड बना है, स्ट्रक्ट नोड, इसी स्ट्रक्चर का पॉइंटर बनाना है, सो स्ट्रक्ट नोड स्टार, सपोज नेक्स्ट न्यू पॉइंटर इज पी बना लिया मैंने, यू कैन मेक पी। ठीक है, तो व्हेन यू राइट दिस स्टेटमेंट वन पॉइंटर p विल बी क्रिएटेड लाइक दिस, पर p में अभी कुछ नहीं है, p अभी किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है। व्हाट आई नीड टू डू, मुझे p को पॉइंट कराना है पहले एलिमेंट, आई वांट दैट p शुड पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या करूं? तभी जाएंगे ना, फर्स्ट से सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे आगे बढ़ेंगे। आई वांट दैट p शुड पॉइंट टू द फर्स्ट लोकेशन, व्हाट आई शुड डू, p में क्या डालूं मैं, व्हाट शुड आई इंटर इन p? देखो लिस्ट सामने है, p i p, यस, p में हेड डाल दो, नॉट हेड स्टार p में सिंपली हेड डाल दो ऐसे। हेड में 10 पड़ा है ना, हेड इज पॉइंटिंग टू 10, मुझे 10 ही तो चाहिए p के अंदर। इफ आई वांट दैट p शुड पॉइंट टू दिस फर्स्ट लोकेशन जो कि 10 है, तो p के अंदर 10 चाहिए ना, मुझे यहाँ 10 चाहिए। 10 कैसे आएगा? हेड से आएगा, वॉट एवर इज हेड, सो p में भी 10 आ जाएगा, तो p भी फर्स्ट को पॉइंट करने लगेगा। बाकी काम वही करना है जो अभी हमने किया था। अब p को मूव कर, जो अभी क्या करना, सेम चीज है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रिंट एफ, यू हैव टू प्रिंट एफ क्या, p का डेटा, यू हैव टू प्रिंट एफ p का डेटा, ऑब्वियसली p का डेटा 1 है। फिर क्या करेंगे, जो अभी हेड के साथ क्या था वो p के साथ करेंगे, p में डाल देंगे क्या, p का व्हाट, p मूव कराना है, p मूव कराना है, तो p में डालेंगे क्या, p का लिंक, यस और नो? फर्स्ट टाइम p 10 को पॉइंट करेगा, p Sir. का लिंक 20 है, तो नेक्स्ट टाइम p इसको पॉइंट करेगा, फिर p का लिंक 30 होगा तो इसको 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 ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। ये चला दो लूप के अंदर, वाइल क्या, जब तक p, टेल मी, जब तक p क्या, While p dot link not equal to null. या नहीं, नो नो, यू आर सेइंग वाइल p का लिंक नॉट इक्वल टू नल। यहां तक लूप चलाते हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट टाइम p का डेटा प्रिंट हुआ 1, नेक्स्ट टाइम p में आ गया 20, p इज पॉइंटिंग टू दिस सेकेंड लिस्ट, p का डेटा प्रिंट हुआ 2, p में आ गया 30, p इज पॉइंटिंग टू दिस लिस्ट। अब ध्यान से देखो, p इज पॉइंटिंग टू दिस थर्ड वन, p में 30 पड़ा है, p में 30 पड़ा है, p पॉइंट कर रहा है इसको, p का डेटा प्रिंट होगा 3 विल बी प्रिंटेड, p में कितना आ जाएगा
P में कितना आ जाएगा 40. 40. P will point to this last one. P का डेटा प्रिंट होगा 4, फिर P बढ़ जाएगा ना. You're getting this? ऐसे तो If मान you write, मेरे कहने का मतलब ये, if you write the condition like this, तो 40 प्रिंट नहीं होगा. 40 प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ 30 तक प्रिंट होगा. क्योंकि जब इस पॉइंट पे होगे तुम, जब P में 40 होगा, be only फिर से कंडीशन चेक करोगे ना, P का लिंक इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज फॉल्स, 40 will not be printed. Getting this? ये प्रॉब्लम है इस कंडीशन के साथ. Yes, sir. क्योंकि इस पॉइंट पे देखो, अभी इस करंट कंडीशन को देखो, P में 40 क्यों नहीं, कंडीशन चेक होगी, P का लिंक नॉट इक्वल टू 0, पर P का लिंक तो 0 है सर, तो 40 तो प्रिंट ही नहीं होगा. So what you have to do, you have to write the condition like this, that खाली P जब तक 0 ना हो जाए, till the time P is not equal to 0, ताकि ये 40 भी प्रिंट हो. जैसे 40 प्रिंट होगा, P फिर से बढ़ेगा, और P में क्या आ जाएगा इस वक्त, P का लिंक मतलब नल, P में आ जाएगा नल, मतलब P अब किसी को पॉइंट नहीं करेगा. फिर कंडीशन चेक होगी, क्या P नॉट इक्वल टू नल है, मतलब क्या P नल है इस वक्त, यस P नल है. अब कंडीशन रुकोगे, अब रुकोगे. गेटिंग दिस एवरीवन? क्यों हमने यहाँ पे P का लिंक नॉट इक्वल टू 0 रखा है, क्योंकि लास्ट वाला प्रिंट नहीं होगा, सिंपल सी बात, इसलिए यहां तक जाना है. ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P नॉट इक्वल टू नल, आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, while P. इसका मतलब भी यही होता है, इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस इन while, और इफ और फॉर छोड़ो, इफ और while को देखते हैं. इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस इन इफ और while, इसका मतलब होता है जब तक ये 0 नहीं होता या जब तक ये फॉल्स नहीं होता, तब तक ये लूप चलेगा. ओके, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू while P नॉट इक्वल टू null. एक ही मतलब है इसका. ओके, यू कैन लीव. चलो, थैंक यू. थैंक यू सर.